Hello everyone, welcome to Purva's Cafe Clash. 29th of July every year is celebrated as International Tigers Day, and this year it is the 10th year of this celebration. For the same, we will be having Mr. Sanjay Shukla with us, who has been the field director at Kana Tiger Reserve. Currently, he is the additional principal chief conservator of Forest Information Technology, Madhya Pradesh. आइए उनसे हम टाइगर्स के बारे में कुछ बातचीत करते हैं, कुछ नए फैक्ट्स जानते हैं और टाइगर्स के ही बारे में और नई नई चीजें पता करते हैं. हेलो सर. Hello Purva, how are you? I'm fine. How are you, sir? I'm good. सबसे पहले तो विश यू वेरी हैप्पी इंटरनेशनल टाइगर्स डे. Thank you so much and wish you also the same and all the viewers also. Why is this day celebrated? Okay. So you need to go into the background actually of tiger conservation. So if you see of late, in the last century, we lost almost 97% of the global tiger population. Almost 97% of the tigers were lost. And still, if you see the total population of tigers in India, if you compare with the rest of the world, so almost more than 70% of the tigers of the global population are in India. So that time there was a summit in St. Petersburg in Russia in 2010. And presently there are 13 tiger range countries where the tigers are found. So that time it was decided to celebrate it as a global tiger day to just bring awareness to the people about the tiger conservation and make synergize effort to conserve this beautiful and majestic species. So this is how this Global Tiger Day celebration started in 2010. Tiger, one of your favorite species as well? Yes, obviously. Obviously, and many times what happened when I was in Kana Tiger Reserve, so many times even my kids were teasing. Like whenever I used to see a tiger, I always get too excited like I am seeing it for the first time. So this Wow. is one such beautiful species which fascinates always. Most beautiful animal I can say. तो टाइगर्स के बारे में आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है? Matlab, this is such a beautiful animal. If you see the charm, this animal has no other animal you can compare with. The grace, the majesty, and even the most gentle animal you can say. Because being in the tiger reserve, many times it is that you have to go on foot patrolling, and especially in the monsoon season, when even the visibility is not good, the grasses are very tall, and there may be tiger around at any place. But normally it avoids human presence. So, in my opinion, very gentle and very, very social animal. सर, जैसा आपने बताया कि टाइगर्स के नंबर्स काफी कम हो गए हैं पहले से अभी तक में, तो व्हाट इज द मेजर रीजन, एज इन व्हाट प्रॉब्लम्स डू टाइगर्स फेस? जैसा मैंने बताया कि लास्ट 100 years में वी लॉस्ट ऑलमोस्ट 97% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन. मेजर रीजन था जो शुरुआत भी अगर हम देखें, इफ यू गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सबसे पहले हम इंडिया की बात करते हैं. यहाँ पे राजा महाराजा पहले जो थे, जो भी प्रेडेटर स्पीशीज थी पूरे वर्ल्ड ओवर, तो प्रेडेटर स्पीशीज को दे वर नेवर वेलकम. उनको मारने का एक शौक रहता था. और दिस वाज अ गेम और अ स्पोर्ट आल्सो दैट टाइम कि शिकार करना, दैट वाज सपोज टू बी अ गेम ऑफ प्रिंसली और जो किंग्स थे उनका था. और सेम ब्रिटिशर्स फॉलोड विद व्हेन दे केम टू इंडिया. तो ब्रिटिशर्स ने भी वही करना शुरू किया जो पहले राजा महाराजा यहाँ करते थे. रैम्पेंट किलिंग इन द नेम ऑफ गेम एंड स्पोर्ट हंटिंग काफी ज्यादा हुआ. इसके बाद पॉपुलेशन काफी डिक्लाइन हुई. और हम ये मानते हैं कि जब 20th सेंचुरी के शुरू में 40,000 टाइगर्स थे और 73 आते आते दे बिकेम लेस देन इवन 4,000, एंड इवन दैट नंबर वाज आल्सो नॉट वेरी श्योर क्योंकि सेंसस का एस्टिमेशन का मेथड अलग था. तो पोचिंग एक रीजन था, चाहे हम गेम हंटिंग के नाम पे कहें. फिर बाद में उसका जो मेडिसिनल यूज और टाइगर स्किन, एवरी पार्ट ऑफ टाइगर इज ट्रेडेड. इलीगल ट्रेड में
पूरे वर्ल्ड ओवर, स्पेशली जो हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं और चाइना है, तो ओरिएंटल मेडिसिन में काफी यूज है चाइना में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। तो मेडिसिनल ओरिएंटल मेडिसिन में इसका काफी यूज है। तो काफी कुछ स्मगलिंग जो है टाइगर पार्ट्स की वहां पे होती है। फिर लितांग प्रोविंस है तिब्बत का, स्किन का, वहां आप देखें वहां भी वही जो अपर क्लास है, जो इलीट क्लास है, तो दे ऑल्सो यूज दीज टाइगर्स फॉर देयर रोब, अपने घर के डेकोरेशन के लिए। तो ये रीजन था एक तो पोचिंग का। दूसरा क्या था, लैंड यूज पैटर्न काफी चेंज हुआ। तो टाइगर का जो होम हम कह लें, जो उसका घर था, हमने खत्म कर दिया। हैबिटेट लॉस काफी हुआ। धीरे धीरे हमने उनके घर को खत्म कर दिया, उनके घर को फ्रैगमेंटेड कर दिया हमने। फिर फ्रैगमेंट होने के बाद ये हुआ कि टाइगर को तो बड़ी एरिया चाहिए। उनका मूवमेंट जब ऐसे एरिया से होके जाने लगा जहां ह्यूमन हैबिटेशन था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ ह्यूमन के साथ, उसमें उनकी किलिंग हुई। तो ये सारे रीजंस हैं। ऐसा कभी हो ना, टच वुड, बट कभी ऐसा हो जाए कि सारे ही टाइगर्स गायब हो जाए, तो व्हाट विल हैपन? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी हम देखें तो पूरे वर्ल्ड ओवर 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं केवल। बाकी सारे कंट्रीज में टाइगर्स नहीं हैं। लेकिन हमको ये देखना होता है कि किसी एक हैबिटेट में वहां पे कौन सी स्पीशीज पाई जाती है। तो अगर हम टाइगर को, हम इंडिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं, टाइगर को हम अम्ब्रेला स्पीशीज बोलते हैं। व्हाई डू वी कॉल टाइगर एज एन अम्ब्रेला स्पीशीज? क्योंकि अगर हम पूरा इकोलॉजिकल अगर हम सिस्टम देखते हैं तो टाइगर जो है ये एपेक्स प्रेडेटर है, ये टॉप पे आता है। अगर हम अम्ब्रेला स्पीशीज का मतलब यह है कि अगर हम टाइगर को कंजर्व करते हैं, डाउन बिलो जितनी स्पीशीज हैं उनका कंजर्वेशन अपने आप होता है। तो इमेजिन करते हैं वो सिचुएशन कि अगर टाइगर नहीं है, टाइगर नहीं होगा तो जिन पे वो फीड करता है उनका नंबर काफी बढ़ेगा। उनका नंबर बढ़ेगा तो हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो डिग्रेड होंगे। और फॉरेस्ट को हम ये कह सकते हैं, इवन इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ मध्य प्रदेश, नर्मदा में जो आप देख रहे हैं क्वालिटी और क्वांटिटी अगर रिवर में फ्लो का है, तो द मेजर वाटर कम्स फ्रॉम द कैचमेंट ऑफ दिस टाइगर रिजर्व्स। ये जो है, नॉर्मली हम टाइगर को, उनकी वैल्यू अगर हम क्वांटिफाई करते हैं टाइगर रिजर्व्स की, तो टूरिज्म से कितनी इनकम हुई, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी इकोलॉजिकल वैल्यू काफी है उन ज्यादा प्लेसेस की। टाइगर तो दिस इज जस्ट अ सिंबल ऑफ दैट प्लेस। तो जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा अगर हमने टाइगर को हटा दिया वहां से। तो द एंटायर इकोसिस्टम विल कोलैप्स। ये बताइए कि अभी एट प्रेजेंट या द लास्ट रिकॉर्ड्स, हाउ मेनी टाइगर्स आर लेफ्ट? गुड क्वेश्चन अगेन। 2004 में क्राइसिस हुई थी हमारे कंट्री में, जब सरिस्का और पन्ना टाइगर रिजर्व से सारे टाइगर खत्म हो गए थे, लोकली एक्सटिंक्ट हो गए। पहले टाइगर थे वहां, बट दे बिकेम लोकली एक्सटिंक्ट, कोई भी टाइगर नहीं बचा। तो एक टाइगर टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उस समय मनमोहन सिंह जी पीएम थे। 2006 से हमने ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन शुरू किया, जो इसी टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे है। हम हर 4 साल पे पूरे कंट्री में एक ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन करते हैं। लास्ट एस्टिमेशन वाज डन इन 2018 एंड द रिपोर्ट वाज रिलीज लास्ट ईयर ऑन ग्लोबल टाइगर डे 2008। अभी 19 में जो हमारा जो ग्लोबल टाइगर डे हुआ था, उसमें जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हमारा 2018 का था, उसकी रिपोर्ट रिलीज हुई। तो जो लास्ट अभी हमारी रिपोर्ट है उसके हिसाब से इंडिया में पॉपुलेशन वाइल्ड में 2967 टाइगर्स, 2967 टाइगर्स। And again, Madhya Pradesh ranks 1 among all the states of the country. So we have 532 tigers, Wow. and we rank number 1 in the country. Yes. सर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं मतलब। नहीं, Mother, this is certainly one thing which fascinates me, and I also work for the conservation of not only tiger, of all the wildlife. So obviously. What are the steps taken by the government to, protect this species? Right. So the first step in this toward the tiger conservation was the creation of tiger reserves. So the first tiger reserves were created in 1973 when the Project Tiger was started. So there were in the first phase 9 tigers reserves were taken and Kanha was one of them. तो सबसे पहले टाइगर रिजर्व्स का क्रिएशन किया गया। मेन फोकस वाज कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। तो उसके लिए स्पेशल मैनेजमेंट प्लान हमारे बनते हैं, टाइगर कंजर्वेशन प्लान हम जिसको बोलते हैं। वी गेट फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैचिंग फंड्स हमें स्टेट भी अवेलेबल कराता है।
सो अ डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव टाइगर मैनेजमेंट प्लान इज प्रिपेयर्ड। हमको यह देखना होता है कि हमें प्रोटेक्शन के साथ साथ वहां पे जो उसका हैबिटेट मैनेजमेंट है उसमें क्या इश्यूज हैं, हमें वो कैसे हैबिटेट को, और तो ये सारे प्रोविजन उस टाइगर कंजर्वेशन प्लान के पार्ट होते हैं। और जी एक और जो इंटरेस्ट होता है जो सबके लिए टाइगर रिजर्व, दे ऑलवेज फैसिनेट द टूरिस्ट। तो टूरिस्ट के लिए भी इको टूरिज्म प्लान जो हमारा बनता है वो भी टाइगर कंजर्वेशन प्लान का भी एक हिस्सा होता है, क्योंकि नेचर टूरिज्म के थ्रू हम लोगों को मैसेज देते हैं कंजर्वेशन का और एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, तो वो भी काफी जरूरी है। जी सर। सर लेकिन जैसे कई सारे अलग अलग टाइप के जो टाइगर्स होते हैं उनकी हैबिटेट भी अलग अलग रहती है, तो हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाते हैं? नहीं, टाइगर के अगर हम हैबिटेट की बात करें, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो प्लेन से लेके अगर हम पूरी कंट्री को हम देखते हैं जो डिफरेंट टाइगर हैबिटेट्स हैं लैंडस्केप में अगर डिवाइड करें तो 5 डिफरेंट लैंडस्केप्स हो जाते हैं, जी जिसमें हमारा कुछ शिवालिक का एरिया है, फिर तराई है, वेस्टर्न घाट्स हो गए, फिर हमारा सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट का एक हमारा ये लैंडस्केप बनता है। इसके अलावा फिर नॉर्थ ईस्ट का है। तो ये कुल मिला के हमारे 5 डिफरेंट लैंडस्केप्स बनते हैं टाइगर के, और जेनेटिकली थोड़ा थोड़ा इनमें वेरिएशन होता है, बट मोस्टली दे नीड ओपन ग्रासलैंड फॉर गुड नंबर ऑफ प्रे। तो अच्छा प्रे बेस्ड के लिए ग्रासलैंड भी हमको चाहिए होते हैं। तो हैबिटेट मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं देन वी ऑलवेज फोकस कि वहां पे जो पैलेटेबल जो ग्रास स्पीशीज हैं प्रे बेस के लिए वो अच्छे से हो, वाटर की अवेलेबिलिटी हो, प्रोटेक्शन के हमारे काफी अच्छा पूरा जो मैनेजमेंट सिस्टम है दैट शुड बी इन प्लेस, और उसके लिए बहुत सारे टूल्स भी हम यूज करते हैं। अगर हम देखें कि जैसे आपने स्टार्टिंग में भी हमें बताया था कि देयर आर मेनी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच हैपन, क्योंकि अब राइट। जो लोग हैं अपना रेसिडेंशियल एरिया थोड़ा सा शिफ्ट आउट कर करके इधर आ रहे हैं इनके जगह पर, तो रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ हो या हाउ टू स्टॉप दिस, उस बारे में आप हमें कुछ बताइए सर। गुड। जैसा सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन जो सबमिट हुआ था उसमें यह था कि बाई 2022 हमको टाइगर का नंबर डबल करना है, जो उस समय नंबर्स थे। एंड ओनली कंट्री टू डू सो फार इज नेपाल। नेपाल में उन्हें अपना जो नंबर था डबल किया। प्रॉब्लम विथ इंडिया इज वी डोंट हैव मच स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स इन द टाइगर रिजर्व्स, क्योंकि टाइगर को एक सर्टेन एक होम रेंज चाहिए होता है, जो टेरिटरी चाहिए होता है। उससे ज्यादा टाइगर्स अगर उनमें होंगे तो उनमें भी आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और डेथ्स होती हैं। टाइगर बाकी के जो हमारे जो टाइगर जो मेटा पॉपुलेशन अगर जो उनको हम कनेक्ट करते हैं कॉरिडोर्स के थ्रू, जो इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स हैं, हमें नंबर वहां बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है, बट वहां प्रोटेक्शन के भी इश्यूज हैं, क्योंकि वो मल्टीपल यूज एरिया है, लोगों को विलेजर्स को वहां राइट होते हैं, तो नॉर्मली दे कम इन कॉन्फ्लिक्ट विथ विलेजर्स। तो हमें सबसे पहले टाइगर नंबर बढ़ाने और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए हमको ये देखना होगा कि लैंड यूज पैटर्न हम वहां चेंज करें। क्या होता है कि अगर वहां खेती हो रही है, ओपन स्पेस ज्यादा है, फ्रिक्वेंटली लोग जा रहे हैं, अगर विलेजर्स भी जा रहे हैं, गांव में के लोग जा रहे हैं जंगल में अगर एनटीएफपी नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने के लिए, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ते हैं। तो हमें एजुकेट करना है कि किस तरह से उनको सावधानी बरतनी है जंगल जाने में, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा जो कोर के बाहर का एरिया है बफर का भी, उसको हमको एक क्वेश्चन की तरह हम यूज करें। वहां हम ये कोशिश नहीं करें कि बहुत ज्यादा टाइगर का नंबर हम इंक्रीज करें, क्योंकि टाइगर का नंबर इंक्रीज करना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आप वहां पे फूड और वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे तो नंबर बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ेगा गांव के लोगों से, और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, ह्यूमन डेथ होती है, तो ऑलवेज टाइगर इज एट द रिसीविंग एंड। तो हाँ टाइगर को जी। फिर हमको कैप्चर करना है, या टाइगर को गांव वाले मार देते हैं, कभी बिजली का तार लगा के, कभी फंदे लगा के। तो इन सब चीजों को हमको ध्यान देने की जरूरत है कि लोकल जो लोग हैं वहां के, उनको हम लोगों को इन्वॉल्व करें, उनको हम एजुकेट करें। आपने तो टाइगर्स को बहुत करीब से देखा होगा, हमने और हमारे हाँ व्यूअर्स ने तो इतने करीब से कभी देखा नहीं होगा। तो आप हमें कुछ फैक्ट्स जो हमें ना पता हो टाइगर्स के बारे में कुछ वो शेयर करिए हमारे साथ में प्लीज। टाइगर को नॉर्मली, टाइगर को देखने के बाद या किसी वाइल्ड एनिमल को हम ये फील करते हैं कि एक वाइल्ड नेचर जो होता है, एक इंस्टिंक्ट होता है कि वो अटैक करेगा। ऐसा नहीं होता, कोई भी एनिमल नहीं अटैक करता है।
अनलेस कि उस एनिमल को कहीं हमसे थ्रेट ना हो। अगर वो परसीव करता है किसी भी तरह का थ्रेट अपने लिए, तो कोई भी एनिमल आपको अटैक कर सकता है। एंड सेम सेम इज विद द टाइगर ऑल्सो। ओके। टाइगर, ह्यूमन इज नॉट अ नेचुरल प्रे, कभी भी आदमी को वो नहीं अटैक करेगा, खाने के लिए कभी अटैक नहीं करेगा। इसके अलावा नॉर्मली हम लोग तो जैसे टाइगर रिजर्व में पेट्रोलिंग भी करनी होती थी, ऑन फुट वॉक कर रहे हैं, सामने से टाइगर आता दिख रहा है, टाइगर विल चेंज even if we are facing head on, this is a tiger who will first take a turn or go inside the forest area. Normally वो दूर से ही उसने देखा टाइगर ने और वो अंदर चला जाता। So I consider tiger as a very gentle and a very kind animal, और बहुत ही रॉयल मैजेस्टिक एनिमल है। तो अनलेस की और थोड़ा सा आप कॉशियस रहते हैं, आप इतने पास उसके ना चले जाएं, मे बी कि अगर फीमेल है कब्स के साथ है या टाइगर है किल पे है, तो इतना हमको अपने सेंसेस को ओपन रखना है जब ऑन फुट हम जाते हैं। नॉर्मली लोगों को जो पार्क मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, उनके अलावा लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि टाइगर रिजर्व में आप ऑन फुट जा पाएं। केवल एक अपॉर्चुनिटी रहती है, और वो मैं आप लोगों को भी और जितने अभी जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कनेक्ट किया हुआ है, मैं सबको बोलूंगा कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन आपको एक ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप टाइगर रिजर्व में जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन होता है अपने को रजिस्टर करें और उस अपॉर्चुनिटी को आप यूज करें। आप एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है जब आप ऑन फुट जंगल में जाते हैं। अगला टाइगर एस्टिमेशन हमारा 2022 में होगा, 2 साल के बाद, तो जरूर आप लोग उस अपॉर्चुनिटी को जो इंटरेस्टेड होंगे तो वो यूज कर सकते हैं। जी सर। जैसे ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है कि दैट पर्सन इज हैप्पी और सैड और लाफिंग। क्या टाइगर्स के साथ भी ऐसा होता है? सभी के साथ होता है। उनका आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, जेस्चर्स हैं, जो कॉल हैं उनकी, सो यू कैन वेरी इजीली यू कैन मेक आउट उसका क्या इस समय एग्रेसिव मूड में है या प्लेफुल, या कैसा है उसका बिहेवियर उस समय कैसा होगा, वो आप एंटिसिपेट कर सकते हो। जी सर। ऐप है एम स्ट्राइप्स करके, ये किस चीज के बारे में ऐप है? हमें आप इस बारे में बताएं तो। ओके, एम स्ट्राइप्स का कहाँ से पता लगा? Actually, this app is really very good. So you have done a very good homework. So I'm very Thank happy. you, sir. So M Stripes actually now in all the tiger reserves, we have 50 tiger reserves in the country and 6 tiger reserves in Madhya Pradesh. So this app is now being used across all the tiger reserves of the country. So M Okay. Stripes is a abbreviation. It stands for Monitoring System for Tigers, Intensive Patrolling and Ecological Status. So in this application, actually, there are 2 modules. So one is the ecological module, which we use while doing this All India Tiger estimation. So that is one module. So that is used only while doing this estimation. Otherwise, also for ecological purpose, you can use this module. Second module is a patrolling module, which all the forest guards use daily while they go for patrolling. So the entire log of everyday foot patrolling effort is recorded with the help of this application. Wow. So whenever a forest guard goes in the forest for patrolling, he just makes his this application on. So this is an Android-based GIS. It uses GIS platform. तो ये Android स्मार्टफोन में वर्क करता है। So this is a very good tool to keep a watch on patrolling being done by the frontline staff. जी सर, बिल्कुल। काफी एफर्ट्स लिए गए हैं हमारे टाइगर्स को बचाने के लिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को सर? मेरा टाइगर कंजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं, तो हमें टाइगर कंजर्वेशन के लिए देखना जरूरी है कि हमें पूरे के पूरे टाइगर, जैसा मैंने पहले भी बताया कि दिस इज एन आइकॉनिक स्पीशीज, flagship species, umbrella species, whatever you name it. So by conserving the tigers, you are ensuring the ecological stability. And another most important thing is the water security place of the country. So by going for the conservation of tigers, you ensure that that place is ecologically secured, water availability will be there. सबसे जरूरी है
हम टाइगर को कंजर्व करते हैं तो हम इकोलॉजिकल सिक्योरिटी हम उस स्पेस की इंश्योर करते हैं। और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वाटर भी। तो ये दोनों चीजें हम इंश्योर करते हैं। तो टाइगर इज जस्ट अ सिंबल, दिस इज एन आइकॉनिक एंड अम्ब्रेला स्पीशीज। So by conserving tiger, you are conserving the entire ecology, the entire ecosystem of that place. So I'll again request all the friends here and you also, Purva. टाइगर कंजर्वेशन लोगों जी को सर। अवेयर करने की जरूरत है। लोग आजकल काफी अवेयर हैं इन चीजों को लेके, और एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ नॉट ओनली टाइगर फॉर ऑल द इवन स्मॉलर फौना। तो हमको सभी को कंजर्व करने की जरूरत है, एंड एवरी लिविंग एंटिटी इन दिस वर्ल्ड हैज अ रोल टू प्ले। तो अगर हम इस पूरे इकोलॉजिकल, अगर हम पूरे स्ट्रक्चर में देखते हैं तो एवरी स्मॉल एनिमल हैज अ रोल टू प्ले एंड टाइगर हैज अ बिगर रोल टू प्ले। तो टाइगर को हम कंजर्व करते हैं तो ये हमारे पूरे इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए, हमारे लिए जरूरी है। सो वी ऑल शुड वर्क टुगेदर टू सेव द टाइगर। जी सर, आपने एकदम अच्छा मैसेज दिया है कि खुद को बचाने के लिए ही हमें टाइगर्स को बचाना भी जरूरी है। Exactly. Thank you so much, sir, for joining me and sharing all of these knowledge, whatever you have shared with us. बहुत ज़्यादा important चीजें हैं ये हमारे लिए, and we will try to abide by whatever you have said and whatever you have taught us. मैं जाते जाते बस आपको यही बोलना चाहूंगी कि हैप्पी इंटरनेशनल टाइगर्स डे टू यू, एंड बस Okay, जैसे thank आप you. काम कर रहे हैं आप वैसे ही करते रहें, and best of luck, sir. Thank you, Purva, and I also wish all the friends a very, very happy International Tiger Day. Thank you so much. Take care.